Yes, everybody. Shall we study? Listen, you are sitting in the wrong way because your writing pad is occupying that space. Hello, dear Vanshika. Can you please come my way a little bit towards me? Yeah, good. And you move towards Vanshika Didi. Move towards Vanshika Didi. Bring the chair. Bring the chair. Sit. You're fine. Just sit there. Sit there. Okay. All right. Good. First of all, I would like to go to some students here. Kekasha, कल मैंने कुछ पढ़ाया. Yesterday I taught something. I want to see how much you have understood. तो बताओ मुझे तुम किस शहर में रहती हो, किस गांव में रहती हो, किस जगह पे रहती हो, कॉल्ड वर्ड यूज करके. Okay, sir. हम्म. I am come from a village called Dalsim Sarai in Samastipur, Bihar. Very nice. लेकिन I am come नहीं, I come. I come. Yes. Okay. Uh, Ankita, would you like to tell us your husband's name using the word called? You're talking to someone, आप किसी से बात कर रहे हो, आप उनको बताओगे मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड का नाम ये है ना? तो ये एक लाइन में कैसे बोलेंगे कॉल्ड वर्ड यूज करते हुए? Good afternoon, sir. हेलो शारिक, आई एम मैरिड, माय हस्बैंड इज कॉल्ड एक्स वाई जेड. I'm married. My husband is called XYZ. It means my husband's name is. My husband is called means my husband's name is. Yes. Going to check the homework. There was some homework, right? Look at the family tree. There is an old couple, George and Alice. There is an old couple, George and Alice, and they have how many children? Three children. They have three children: James, Mike, and Faye. They have three children. And James and Faye are not married. James and Faye are not married. Mike is married. His wife is called Ellen. Mike and Ellen have two children called Karen and Charlie. Fine, let's read the sentences. First sentence number 3. James is Mike's brother. James is Mike's brother. James is a brother. Whose brother? Mike's brother. James is Mike's brother. 8. Karen is Charlie's sister. Karen is Charlie's sister. Karen is Charlie's sister. Shabnam beta, you can see Karen and Charlie here. Yes, sir. Karen is Charlie's sister.
Next, Alan is Mike's wife. Alan is Mike's wife. Alan is Mike's wife. Next, Charlie is Mike's son. Charlie is Mike's son. Yeah. Charlie is Faye's nephew. Yeah. Charlie is Faye's nephew. Faye is the aunt. Faye is the aunt. Charlie's aunt. Right? Faye is Charlie's aunt. Charlie is Faye's nephew. Karen and Charlie are Mike's children. Karen and Charlie are Mike's children. Karen is Ellen's daughter. Karen is Ellen's daughter. Ellen is Karen's mother. Ellen is Karen's mother. Karen is Ellen's daughter. Now some more sentences. Ellen is Karen's mother. Faye is Charlie's aunt. George is Alice's husband. George is Alice's husband. Alice is Charlie's grandmother. Alice is Charlie's grandmother. Okay. Karen is Faye's niece. Karen is Faye's niece. Vishal, focus. Karen is Faye's niece. George is Karen's grandfather. Right. Mike and Ellen are a couple. Mike and Ellen are parents. Mike and Ellen are parents. That's correct. Mike is Charlie's father. And James is Karen's uncle. James is Karen's uncle. Any issues, anybody? Do you have any questions to ask? Anybody has any questions to ask? Now, this is a very, very useful exercise. If you get this exercise right, if you correctly complete the sentences, it shows that you have a fundamental understanding of English sentences. As a teacher, I feel very happy and confident when my students get this exercise right. When they do these questions correctly, I feel very, very confident about my students. Yep. Because in some classes, it's not very easy. In some classes, students write opposite things. मैं एक बात बोलता हूँ, सुनना जरा. Mike is Karen's daughter. Mike is Karen's daughter. कैसा लगा? देखो पिक्चर्स. Mike is Karen's daughter. सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? Mike is Karen's father. कुछ लोग नहीं समझ पाते मेरे बच्चों. कुछ लोग जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है माइक इज कैरेंस डॉटर. मैं जब भी बोलते हैं माइक इज कैरेंस डॉटर. ठीक है, जबकि माइक इज फादर. माइक इज कैरेंस फादर. अगर आप फादर बोल पा रहे हो तो आप बहुत अच्छा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है. यहां से चीजें आसान होनी चाहिए फॉर यू. और एक दिन भी लापरवाही नहीं, जरा भी नहीं. ओके, जो आज का काम है वो आज करेंगे ताकि अगले दिन हम तैयार हैं नए लेसन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड.
The real world. In the real world, do you know some famous people and their relationships? Do you know some famous people and their relationships? For example, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. You know them? Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Give me a sentence. हाँ हाँ, जो भी बोलना है बोलिए बोलिए। कोई स्टार्ट करेगा राहुल गांधी से, कोई स्टार्ट करेगा सोनिया गांधी से। चलिए जैसे मनाए बोलिए, कम ऑन, अपने पार्टनर को बताइए। हम्म बताइए एक दूसरे को, बताइए एक दूसरे को। राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आगे, come on. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया, सोनिया गांधी। Rahul Gandhi is Sonia Gandhi's son. Rahul Gandhi is Sonia Gandhi's. Sonia Gandhi is Rahul Gandhi's mother. Sonia Gandhi is Rahul Gandhi's mother. Okay, some more people. Lalu Yadav, Tejasvi Yadav. Lalu Yadav, Tejasvi Yadav. Lalu Yadav is Tejasvi Yadav's. Tejasvi Yadav is Lalu Yadav's son. The more names, guys, the more famous names. Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan. Amitabh Bachchan is Abhishek Bachchan's father. Abhishek Bachchan is Amitabh Bachchan's son. Abhishek and Aishwarya. Make a sentence. Abhishek is Aishwarya's husband. And Aishwarya is Abhishek's wife. Shah Rukh Khan and Salman Khan. Are they relatives? Okay, Salman and Gauri. Shah Rukh and Gauri. Shah Rukh Khan is Gauri's Husband. husband. Shah Rukh is Gauri's. Gauri is No. Shah Rukh's wife. Okay. I think you guys understand this. Let's move on to 7. Adjectives. Write the opposite adjective. What's this noise, Shabnam? Shama? What's this noise? Sorry, sir. Okay, exercise 7. Adjectives. Adjectives are words which describe nouns. Adjectives describe nouns. Adjectives describe nouns. For example, a cheap pen. A cheap pen. In this phrase, the adjective is cheap. शबनम बताइएगा, a red दुपट्टा, इसमें एडजेक्टिव क्या है बेटा? नहीं पता? Red. हाँ, बहुत बढ़िया, रेड इज द एडजेक्टिव. कैसा दुपट्टा? रेड. Red dupatta. तो रेड इज द एडजेक्टिव. A new dupatta. What is the adjective, Shabnam? A new dupatta. New. Right. A big dupatta. What is the adjective? Big. तो ऐसे वर्ड्स जो किसी और नाउन के बारे में बताते हैं कि वह कैसा है. एक सेंटेंस सुनिए. हर दुपट्टा इज रेड. हर दुपट्टा इज Red. ऐसे भी बोला जा सकता है. हर दुपट्टा इज रेड. Red. रेड क्या है बेटा?
Adjective. adjective, ठीक है. Her dupatta is new. Her dupatta is new. new, सुनना जरा. Her husband is caring. Her husband is caring. caring, Her husband is caring. कैसा है उसका हस्बैंड? केयर caring, करने वाला. तो एडजेक्टिव कौन है इसमें? केयरिंग. caring, कैसा हस्बैंड है? caring, आप लोग फ्यूचर में केयरिंग हस्बैंड बनोगे? यस सर बोला किसने? बोला. बहुत अच्छा. नहीं बनना चाहिए भाई. सिर्फ केयरिंग सन नहीं बनना है. वी शुड बी केयरिंग हस्बैंड टू. विशाल केयरिंग हस्बैंड बनेंगे? यस ही विल. हाँ बोला ना. हंसा मतलब क्या हुआ? यस. बच्चा क्या बोलेगा? हाँ बना दो. ऐसा थोड़ी है. ठीक है बेटा. अ केयरिंग हस्बैंड. अ केयरिंग टीचर. अ केयरिंग. राइट. केयरिंग टीचर मतलब करने ध्यान वाला. रखने वाला अभी बताया टीचर, था. हाँ. जो जिसको फर्क पड़ रहा है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो. आप अच्छा फील कर रहे हो या अच्छा फील नहीं कर रहे हो. अ केयरिंग टीचर. ओके. ऑलराइट. Hmm. So these are some adjectives in the box. Easy, small, cold, good, nice, expensive, young, old. These are some adjectives. Do you agree? These are adjectives. बहुत गौर से देखना. इसका मतलब क्या होता है? ये सेकंड बात है. फर्स्ट बात क्या है कि ये सारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. Easy is an adjective. Nice is an adjective. Young is an adjective. Old is an adjective. These are adjectives. These adjectives will describe something. देखो. Sentence number 1. Opposite लिखना भाई. London isn't cheap. London isn't cheap. It's expensive. It मतलब बेटा. yeah, Good job. Very well done job. अब it मतलब यह बोलना छोड़ दिया तुम लोगों ने, है ना? बहुत अच्छा किया. क्योंकि जितने दिन तक आप it मतलब यह बोलोगे आप यूज नहीं कर पाओगे it को. जब आप it का मतलब निकालने लगोगे फिर it मुंह पे भी आएगा बेटा. मैंने कल बताया था काइंड मुंह पे क्यों नहीं आता. क्योंकि काइंड के बदले एक वर्ड याद कर लिया था हम लोगों ने हिंदी में. दयालु. मुझे कचालू बहुत अच्छा लगता है. लंदन इजंट चीप बेटा. इट्स एक्सपेंसिव. लंदन इजंट चीप. इट्स एक्सपेंसिव. 2. माई कॉफी इजंट हॉट. इट्स कोल्ड. व्हाट इज कोल्ड बेटा? अब cold, इट मतलब यहाँ क्या? माई कॉफी. माई कॉफी इजंट हॉट. इट्स कोल्ड. देखा ऊपर वाले सेंटेंस में इट मींस लंदन. सेंटेंस नंबर 2 में इट मतलब nice, ऐसे शब्द जिनका अपना मीनिंग नहीं होता जो किसी और नाउन के बदले आते हैं उनको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नहीं समझाया? मैं बताता हूं. गौर से देखो मेरे बच्चे. लंदन इजंट चीप. इट्स एक्सपेंसिव. ये जो इट है इसका क्या मतलब है यहाँ? लंदन. आओ सेंटेंस नंबर 2. माई कॉफी इजंट हॉट. इट्स कोल्ड. इट मतलब क्या है यहाँ बेटा? यानी कि इट का nice, अपना कोई मीनिंग नहीं है. वो किसी और के जगह पे आ रहा है. हम इट ना बोलना चाहें तो लंदन बोल सकते हैं बेटा. लंदन इजंट चीप. लंदन इज एक्सपेंसिव. सेंटेंस नंबर 2. माई कॉफी इजंट हॉट. इट्स कोल्ड. माई कॉफी इज कोल्ड. ऐसा बोल सकते हैं ना? तो ये एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे नाउन के बदले आया है ना? ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा जो दूसरे नाउन के बदले आए? adjective, नहीं. it's एडजेक्टिव. it, एडजेक्टिव तो बोलते हैं जो डिस्क्राइब करे जैसे ओल्ड, यंग, है ना? न्यू, it, चीप, इजी. ये है एडजेक्टिव्स. इनको क्या बोलते हैं बेटा जो दूसरे नाउन के बदले आ जाए? it's, चलो अब बाद में बताता हूँ. नंबर 3 पे आओ. आर योर शूज न्यू? आर योर शूज न्यू? नो, दे आर ओल्ड. दे मतलब बेटा माई शूज. आर योर शूज न्यू? नो, दे आर ओल्ड. माई शूज आर old. all, Number 4. You aren't a bad student.
You are a good student. Number 5. My dad's 40. He's old. He कौन बेटा? My dad My dad. Dad. 40 is old. तो मुझे बताइए ये जो वर्ड्स हैं he, it, they, अच्छा सब ऐसे ही दिखे ना, दूसरे के बदले आए हैं ना? अगर हम चाहें तो वापस वही चीज लिख सकते हैं, माई डैड इज 40, माई डैड इज ओल्ड, बोल सकते हैं ना ही इज ओल्ड की जगह। तो मुझे बताइए कि ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं जो किसी और के बदले आ गए? किसी नाउन के बदले ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आ जाते हैं इनको कहते हैं प्रोनाउन। और Noun. हिंदी में क्या Yes, बोलते sir. हैं मेरे बच्चों? No. सर्वनाम। क्या पूछना? सर्वनाम, सबका नाम है वो, किसी के लिए भी आ सकता है सर्वनाम। सर्व मतलब सारे, नाम वो सबका नाम है। जी बताइए जो इट है वो लंदन भी है, इट जो है वो कॉफी भी है। My. ठीक है, अगर मैं बोलूं इट माई टी शर्ट, आई लाइक माई टी शर्ट, इट्स रेड, तो इट मतलब माई टी शर्ट। तो सर्वनाम यानी सारे का नाम, सबका नाम, सर्वनाम। और इंग्लिश में बेटा प्रोनाउन। Pronoun. नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन ऐसा नाम जो सबके लिए फिट हो जाए, प्रोनाउन। प्रो जो होता है वो बेहतर होता है ना बेटा, जैसे कहते हैं 15 पैशन, Pro Max. हीरो होंडा, पैशन, फिर आया पैशन प्रो, प्रो आया तो बेहतर हुआ कि नहीं? पैशन, पहले हीरो होंडा पैशन आया, फिर पैशन प्रो, तो प्रो कोई चीज हो जाता है तो बेहतर हो जाता है ना। तो प्रो नाउन है, यानी कि नाउ ऐसा नाउन है जो सब जगह आ सकता है, किसी के बदले भी आता रहेगा। इंग्लिश में दो आइडियाज लीजिए, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स, दिमाग में रहेंगे ये। और हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं बच्चों? विशाल, Sarvanam. need to show some willpower, Vishal. Maybe you need to change your position. Maybe you need to come and sit here. Please, Sad, you go. You come. Hmm. Come here. You come here. सारे लोग सर्वनाम समझ गए? सर्वनाम हिंदी में क्या होता है बेटा? इंग्लिश में सर्वनाम Pronoun. प्रोनाउन, नहीं प्रोनाउन ऐसे मत बोलो, प्रोनाउन, Pronoun. प्रोनाउन। प्रनाउन प्रनाउन ऐसे नहीं करना, प्रनाउन ओके, प्रणाम बोल, प्रणाम प्रणाम, ऐसे नहीं, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ओके, दिस साइड, विशाल ऑन दिस साइड, yeah, प्रोनाउन। लंदन इजंट चीप, इट्स एक्सपेंसिव। मैंने आपको कितने प्रोनाउन सिखाए हैं? 7। Three. 7 सिखाए, आप भूल गए ना? मैं याद दिलाता हूँ, बोलो ऐसे। देखो इतने सारे लोग आई बोलते हैं अपने आप को, आनी, आई सबका नाम है ना? आई आई सब बोले ना अपने आप को आई। सब बोल सकते हैं, विनय विनय ऐसे कर सकते हैं नहीं ना? लेकिन आई सब ने किया ना, बोलिए। I. अरे यू है, जिधर आंख है उधर उंगली है, यू। आप लोग भले ही मत बोलो, मैं बोलूंगा। यू, ठीक है, समझ गए? कैमरा, हाँ, यू शबनम, यू यस यू। Yes, sir. क्या हुआ? नहीं नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना, सब सही है। ठीक है, पहले पीछे आपको इसी के लिए इधर क्यों बुलाया मैं? यू कांट put your weight on the wall, that part is closed. Guys, pull the bench a little bit away from the wall. Yeah, yeah, that's good, that's good. Now it's better. Okay everybody, what was I saying? Pronoun है ना, 7 pronouns I've taught you. मैंने आपको 7 pronouns सिखाए, I, you, Okay.
they, or it. This pronoun नहीं है. It. कोई भी सिंगुलर चीज ले लो. It. It. All right. It. सिंगुलर होना चाहिए. टू फिंगर. लेकिन साइन तो एक ही है ना. इट क्या है? साइन. इट. इट इज अ साइन ऑफ विक्ट्री. इट इज अ साइन ऑफ. मैंने इट क्यों बोला? कि मैं 2 फिंगर्स की बात नहीं कर रहा, इस साइन की बात कर रहा हूं. इट इज अ साइन ऑफ. तो इट. यही 7 प्रोनाउन सिखाए मैंने. आई बात समझ में? मुझे पता है सब कुछ जानते हुए आप बहुत कुछ नहीं जानते. 7 प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी हिंदी नहीं जाननी होती है, उनका पर्पस जानना होता है कि कैसे, किसके लिए वो यूज हो सकते हैं. लंदन isn't cheap, it's expensive. My coffee isn't hot, it's cold. Are your shoes new? No, they're old. You aren't a bad student, you are a good student. Number 5. My dad's 40, he's old. My dad is 40, he's old. सारे लोग किताब पे ध्यान देंगे. My dad is 40, he's old. If you don't have the book, you have the mobile phone, right? My dad is 40, he's old. अब सुनो जरा जवाब. He isn't old. 40 is young. ये पापा की दूसरी वाइफ है दोस्तों. इसलिए उनको बुरा लगा ये सुन के. He isn't old. 40 is young. Okay. अब अपने पापा को ओल्ड बोलो, मम्मी को बुरा लगेगा. I'm telling you. Try this. Try this. In front of your mummy, try to say Papa is old. Mummy won't be very happy. Even if Papa is 60 years old, mummy won't be very happy. I'm telling you. अगर ये मम्मी सेकंड मम्मी तो पक्का खुश नहीं होने वाली है. वो तो झगड़ा कर लेंगे. निकल मुझौसा यहाँ से. Okay, number 6. This exercise isn't difficult. It's easy. This exercise isn't difficult. It's easy. It means here, this exercise. This exercise isn't difficult. This exercise is easy. क्या हम लोग बार बार नाम रिपीट करें, नाउन को रिपीट करें? अच्छा लगता है? तो उसके बदले प्रोनाउन. कोई जरूरी नहीं. इट कभी दे, कभी यू, कभी वी, कभी शी. Our flat isn't big. So after marriage, the daughter is talking to her mother. Our flat isn't big, mummy. It's a small. Then mummy says, don't worry, beta. Your papa will give you some money. You can buy a big flat. Okay? Away from your sas sasur. Away from your. ऐसी बातचीत होती ना नई बेटी की बात, शादी के बाद. माँ बाप आजकल यही बोलते हैं, डोंट वरी. बेटी ने कहा, our flat isn't big, it's small. Don't worry, beta. Papa will give 10 lakh rupees and then you guys can buy a new flat, a bigger flat, away from your sas sasur. Number 8. The weather isn't horrible. It's nice. The weather isn't horrible. It's nice. अभी इट मतलब क्या हो बेटा? द वेदर. तो क्लियर है ना? इट मतलब यह नहीं होता. ओके? वो सिर्फ थ्योरी के लिए रखना चाहिए. प्रैक्टिकली लाइफ में आप यह बोलते कहाँ हैं? मौसम बड़ा अजीब है, अच्छा नहीं है. नंबर 2. द कंप्लीट द एडजेक्टिव्स बेटा. द वेदर इज नाइस. इट्स sunny. The weather is nice. It's sunny. Number 2. It's difficult to understand you. You speak fast. Number 3. My family is very nice. We are very friendly. My family is very nice. We are very friendly. How about your family? Are the people friendly? Your mom, dad, brother, sister, they're all friendly? Or Papa says, I'm the father. Respect me.
Is that how your papa behaves with you? Yeah. But in the past, papas were like that. Always strict, shouting, Khadak Singh. Papas were like Khadak Singh. Yeah. Nowadays, papas are like friends. Teachers are also friendly nowadays. Earlier, teachers were also like Khadak Singh. You guys have Khadak Singh as your father or a friendly father? You have a Friendly. father? You have a friendly father? Yes, sir. Friendly father. Okay. Friendly teachers or Khadak Singh teachers? Friendly teachers. Yeah, okay. Lucky you. Yes. My family is very nice. We are very friendly. Friendly समझ रहे हैं? Yes, Friendly sir. is an adjective. Friendly is an दोस्त के जैसा, दोस्ताना. Okay, friendly. I like my girlfriend. She is beautiful. हालांकि ये कोई रीजन नहीं पसंद करने का, ये तो कोई बढ़िया रीजन नहीं है. I like my girlfriend. She is beautiful. कल एक्सीडेंट हो गया, beautiful नहीं रही तो, right? That's not a good reason to like someone. I like my girlfriend. She is kind. She is generous. She is helpful. Number 5. My book is good. It's very interesting. My book is good. It's very interesting. 6. MM क्या है पहले ये बताओ. मॉम. अच्छा मॉम है वो. मैं समझ सकता हूं, ठीक है, लेकिन ओ तो नहीं लिखा है. एक्सप्रेशन निकलता है वो, है ना. हाँ वो करके बताओ. मॉम. मॉम. Hmm. Hmm. The coffee is really good. The coffee is really good. It's lovely. हम लोग बचपन में पढ़े थे लवली सिर्फ लड़की के लिए यूज करना है. तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ डाला था क्या? लवली सिर्फ लड़की के लिए यूज करना है. फेयर एंड लवली भी लगाती लड़की, राइट. लेकिन लवली मीन्स कोई चीज जो हमें अच्छी लगे, कोई भी चीज जो हमें अच्छी लगे. फॉर एग्जाम्पल दिस कोल्ड कॉफी. It's lovely. Oh, I was drinking from here. Ah. Homework for tomorrow. I'm sharing another page. Our street. Our street. Remember the two characters, Andrew Johnson and Claudia Luke. Who's the engineer, Andrew or Claudia? And who is the zoologist? Who lives in America? Who lives in America? Who isn't married? Who has a dog? Who earns 200 pounds a day? Who works 12 hours a day? Who works in the desert? Who drinks cold coffee in the class? उसमें है ही. Vinay sir. Okay. All right. I didn't have my lunch today. I came from a school and I was feeling very tired. So I decided to rest. Well, normally what happens, I keep getting phone calls, and it's difficult to rest. But thankfully, today my phone didn't ring. My phone didn't ring, and I slept for about an hour.
Okay. So good. I'm feeling good. I didn't have lunch, so this cold coffee is great because it gives me energy. Yeah. I'll have my lunch about after your class, maybe at 5:30. Who studies snakes? Who plays Claudia Lu. snooker? Who plays snooker? Who goes to the gym? Who works with her husband? अब आप पूछो मेरे से, पूछो ऐसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने कितनी देर कराई ना प्रैक्टिस, मेरे को कराओ प्रैक्टिस, कम ऑन। नहीं वो मैंने सारे सवाल हु से शुरू किए ना, आपको बस खाली ये वाले करने हैं अभी अभी फिलहाल, पहले ये वाला जो मैंने कराया। हु लिव्स इन कैलिफोर्निया? क्लोडिया लिव्स इन कैलिफोर्निया। हु हु कम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड? हु कम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड? दीवार पे नहीं आना है, वापस आइए, दीवार पे आके नहीं बैठना। कम अगेन। हु हु लिव्स इन स्कॉटलैंड? हु लिव्स इन स्कॉटलैंड? एंड्रू। हु वर्क्स 12 आवर्स? एंड्रू। चलो प्रैक्टिस कर लो विद अ पार्टनर, ऐसे ही सवाल पूछेंगे खाली हु, सिर्फ एक तरह से, ठीक है? I'm opening the rooms. Shall we start the rooms? Shall we open the rooms? I'm putting the exercise, the text as well in the group. Please practice, okay? Hey Shabnam, are you with Shama? शमा के साथ हो क्या? No, sir. I with Rukaiya. अच्छा ठीक है, तो आप शमा के साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं। Yes, sir. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो ब्रेकआउट रूम वाले में उनको थोड़ी मुश्किल हो जा रही है बेटा, अदरवाइज आप अगर
अगल बगल वाले रूम में ना, तो आवाज लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलो मैं बुला रहा हूँ, यहीं बुला रहा हूँ। Yes, sir. She will be here in this breakout room here. Give me a second. Yeah, Shama, you're here. Yeah. शमा का इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे लगता है। शमा, Yes, sir. यस बेटा, आस्क क्वेश्चंस। Just a second, sir. हु टीचर्स एट यूनिवर्सिटी, है ना? हु टीचर्स एट यूनिवर्सिटी? शमा, मुश्किल हो रही है? चलो No, ब्रेक, sir. मेन सेशन में चलो, मेन सेशन में चलो, चलो मेन सेशन। टेक्स्ट, टेक्स्ट, everybody, 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 take a look। देखो, मैं एक खास तरह का सवाल बोलता हूँ। Who is an engineer? Andrew Johnson. Who comes from New Zealand? Who lives in Scotland? Andrew Johnson. Who works on an oil rig? Andrew Johnson. Who works 12 hours a day? Andrew Johnson. देखो मैं कैसे सवाल बना रहा हूं, देखते जाओ। अगला सवाल तुम बनाओ। Who has 2 weeks holiday? Who has Andrew Johnson. 2 weeks holiday? Answer. Andrew Johnson. Next. Who earns 200 pounds a day? Andrew Johnson. Next question. Who goes to the gym? Andrew Johnson. Andrew Johnson. Next question. Who plays snooker? Andrew Johnson. Last question. Who isn't married? Andrew Johnson. Right. You have a book there? Good. Okay. Beta, you can pass the book because we can look at the screen here, right? You guys manage. You guys manage. Yeah. Let's look at the other text. Let's look at the other text. Claudia Luke. What happened to your book? What happened to your book? What? It's your book. Okay. अगर इसने कहा होता ना कि मैंने छोड़ दिया घर पे, मैं बता रहा हूँ इसको, मैंने निकाल दिया होता क्लास से। If he had said कि मैंने छोड़ दिया घर पे book, I would have really gotten angry. I was about to, yeah, he doesn't have his book. Then he pointed, oh, my book is there. Let's look at this text. Claudia text, beta. Question. Who is American? Claudia Luke. Who is 41 years old? Claudia Luke. Next question. Who is a zoologist? Claudia. Claudia Luke. Yeah, look. Next question. Who teaches at university? Claudia Luke. Next question, beta. Who lives in California? Claudia Luke. Claudia Next, Luke. beta. Claudia looks. Who works with her husband? Claudia Luke. Next, Claudia beta. looks. Who works at the research center? Who works at Claudia the Claudia Luke. Next, beta. Who works in the Mojave Desert? Claudia Luke. Claudia look. Who studies snakes and other Claudia animals? Claudia Claudia Luke. looks. Next. Who likes working in the desert? Claudia Claudia Luke. looks. Next. Who writes songs in her free time? Claudia Luke. Claudia Luke. Who walks her dog? Claudia Luke. Claudia Luke. Last question. Who earns $60,000 a year? Claudia Luke. Claudia looks. आसान है। तो ये एक खास
तरह के हिंदी में बताओ मैंने क्या क्या पूछा था, आप लोग बताओ। अब जो भी सवाल किया था उसकी हिंदी करते हुए बोलो, चलो। कौन रहता है कैलिफोर्निया में? ऐसा ही पूछा था ना हम लोगों ने। कौन अपने हस्बैंड के साथ काम करता है? ग्लोरिया लुक। कौन डेजर्ट में काम करता है? Claudia. कौन स्टडी करता है सांप को? ऐसा ही करा ना हम लोग ने। एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, No, sir. बोलो। हु टीचेस यू इंग्लिश? Vinay, sir. No, sir. इजी है ना, आसान है ना? हु लव्स यू मोस्ट? हु लव्स यू मोर देन एनीबॉडी एल्स? योर मदर। योर mother. Who loves you the most? Your mother, right? My mother. Who beats you without a reason? Who beats you without a reason? Who beats you without a reason? मेरा नाम ना आ जाए खाली कहीं पे। विनय सर। Okay. Hmm. I think ये who वाला तो हम लोगों ने काम कर लिया है। अच्छा रुको। Who hoist the flag on the Red Fort on the 26th of January? On the 26th of January, the president. Who hoists the flag on the 15th of August? The President of Prime India. Minister. The Prime Minister, right? Who helps you when you are lost in the street? My brother. ओके गुड। अच्छा चलो, मैंने बेकार सवाल पूछा है कई लोगों के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे। चलो आसान कर देते, ठीक है। Who makes jokes with you when you go to your sasural? Who makes jokes with you when you go to your sasural? Your Sali and your Sarhaj, your sisters-in-law, your sisters-in-law, right? Yeah. They make jokes ना? बोलो सर एक्सपीरियंस नहीं, नहीं पता। बोल दो बोल दो। बाकी पापा को तो देखा नहीं ससुराल जाते हुए। ठीक। हम्म। Who teaches Sanskrit? Who teaches Babban sir. Sanskrit? हाँ? Babban sir. Which sir, Shabnam? Babban sir. अच्छा। हालांकि हालांकि जो सवाल मैंने पूछा उसकी हिंदी करना सारे लोग। हु टीचेस संस्कृत, इसकी हिंदी करना। संस्कृत कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, है ना? कौन पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। है। संस्कृत। ओके गुड। हु सिंग सॉन्ग्स? कौन गाना सिंगर्स, गाना आता है? सिंगर्स, सिंगर्स। Who sings Arjit singers? Singh. Arijit Singh is one of them. Okay. Who sings songs? Singers. Okay. एक फनी क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन पूछूं? पूछ ही दूं? Who farts in the class? Not me. इसका जवाब क्या होगा? Not me. Okay. Well, all right. चलो, बड़े लोग हैं यहाँ, क्या मैं बच्चे वाला जोक मार रहा हूँ यहाँ? Okay. Let's move on. तो बेटा ये मैंने सिर्फ ऐसी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई क्योंकि एक टाइम आता है जब ये वाला मुश्किल लगता है। अभी आसान लगा था ना? एकदम आसान लगा था ना? हु लव्स योर पप्पा? पक्का ना? ओके गुड फॉर यू। ठीक है, पूछा मैंने, जवाब दो। हु लव्स योर पप्पा? Who loves your Baba? हु लव्स योर पप्पा? हाँ? हु लव्स योर पप्पा? My योर grandfather. अच्छा ठीक, ठीक है, बच के जा रही है शबनम। अच्छा बोली, माय ग्रैंडफादर। अच्छा है, सही है, सही है, सही है। एंड योर मम्मी होपफुली, या होपफुली, या Yeah. या ओके।
Who gives you gifts? My brother. My Your brother. brothers, Okay. sisters. Yeah. Who gives you gifts, guys? Right. Hmm. All right. मुझे लगता है ये वाला बहुत काम आने वाला है, ये वाला प्रैक्टिस जो है बहुत काम आने वाला है. चलो, लेट्स मूव ऑन. अच्छा, look at all these verbs, guys. Can you underline the verbs in your book? In the Andrew Johnson text, can you underline the verbs? In the text, can you underline the verbs? Beta, do it together. Yeah, both of you. You guys can look here and please make an mental note of the verbs. Verbs in the text about Andrew Johnson. Look at the verbs. Are you done? How many verbs have you underlined? All? Some? 6? There are more. Very good. Underline the verbs, guys. Sir, 5 words. Carry on with your work. Carry on. आपको वीडियो नहीं देखना होता है ना. You carry on with your work. Underline the verb. Underline all the verbs. बोले तुम भूल गए ना, तुम इतना भी Okay. क्लास छोड़ती. So let's see. The first verb is. Which verb? Be verb. Next sentence. What is the verb? Comes. Next sentence. Lives. Next verb. Works. Work. Next. Works again. Right? Works 12 hours. He works 12 hours. Plays. Next. Has. He has. है ना verb? Verb का position कहाँ होता है? Subject के बाद. He has. Next. Earns. Next. Goes. Next. Plays. Is. Last. Isn't. Isn't यानी is be verb, right? मुझे बताओ क्या बोलोगे? I live कि I lives क्या बोलते हो? I live फिर कर दिया उल्टा पुल्टा. I in India. I live in India. I live in India. lives बोलेंगे. I live. You live. You live. लेकिन अगर बात कर रहे हो he, she, it, तो live नहीं बोल सकते. इतना सिंपल है. मैं और कुछ नहीं बोलूंगा. ये लगाते वो लगाते ऐसा नहीं बोलना है. ठीक है?
लिव नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा? लिव्स। आई गो, आई गोज, आई गो। I go. वी गोज, We वी गो। go. यू गो। Go. लेकिन ही, Go. इट, बस ये तीन के साथ। कौन से तीन? To. ही, शी, इट। Sir, give me a few minutes. यस यस शारिक, नो प्रॉब्लम्स। ही, शी, इट गोज। सारे लोग अपने दिमाग में मेंटल नोट बना लीजिए। ही, शी, इट, ठीक है। लिव्स। आई अर्न और आई अर्न्स। आई स्टडी और आई स्टडीज। I study. पक्का ना? बाद में Yes, sir. स्टडीज करने लगोगे। No. आई स्टडी, I study. ही स्टडीज, शी। He is study. इंग्लिश में ऐसे ही होता है। आई स्टडी, शी Studies. Studies. स्टडीज। एनी प्रॉब्लम्स? ये बात कितनी मुश्किल है ध्यान रखने के लिए? बोलो, मेरी बहन बहुत टीवी देखती है। माई सिस्टर वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। Too much. Too. करेक्ट है? माई सिस्टर वॉचेज, माई सिस्टर, मैं बहुत टीवी देखता हूं। आई I वॉच I अ लॉट ऑफ watch. टीवी। तो फोकस शुड बी वॉच एंड वॉचेज। वॉचेज किसके लिए है? He, Second. it, He, she. she, it। गोज किसके लिए है? He, she, it. लिव्स। He, she, it. स्लीप्स। He, she, it. अर्न्स। समझ गए? तो इनको कह सकते हैं ही शीट फॉर्म। क्या कह सकते हैं? He, ही शीट फॉर्म, क्योंकि सिर्फ ही शीट के लिए है वो, बाकी कहीं कहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सिर्फ ही शीट के लिए। शाउट्स, ही, शी, इट। बात समझ में आई? बाकी आई शाउट, यू, वी शाउट, ही शाउट्स, शी शाउट्स, इट। तो ही शीट फॉर्म समझ में आ गया इंग्लिश में? शाउट्स, शाउट्स को V1, V2, V3, V4, V5 क्या बोलते हैं? शाउट्स को क्या बोलते हैं? V1 कि V2 कि V3, V4, V5 क्या बोलते हैं? V5। गोस को V5। लिव्स यानी जो V5 वो ही शीट फॉर्म है। V5 जो है वो क्या है? ही शीट फॉर्म है क्या? हाँ, V5 क्या होता है? ही शीट फॉर्म होता है। ओके, समझ में आ गई बात? V5 इज ही, शी, इट फॉर्म, मतलब कि ही शीट के साथ जो लगे वही है V5। फॉर्म मतलब रूप। ही, शी, इट। लुक्स के साथ क्या बोलेंगे? राइट, लुक्स किसके साथ बोलना है? मुझे बहुत अजीब तरह से देखती है वो। शी लुक्स एट मी स्ट्रेंजली, जैसे कि बस आज ही रात तो आप जियोगे। उसके नजर में क्या रहता है? आज ही रात तक तो है आपका जीवन। शी लुक्स एट मी स्ट्रेंजली, शी लुक्स एट मी, अजीब तरह से देखती है वो। दिव्या, शी लुक्स एट मी स्ट्रेंजली, मेरे को डर लगता है, आई फील स्कैर्ड, कि आई फील स्कैर्ड, आई फील I स्कैर्ड। feel scared. When she looks at me that way, I feel, and she feels scared। feel क्या फर्क है? और वो he, she, it, feels किसका फॉर्म है? he, she, it के लिए, बस उसी के लिए है। बात चली गई दिमाग में? अब इसको प्रैक्टिस करना रहा। दिमाग में चली गई, मुंह से नहीं निकलना। जब बोलने जाओगे फिर गलत बोल जाओगे ही फील। क्या बोल दोगे? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना टेंशन में रहेगा ना कि वो ध्यान नहीं रहेगा कि हमने क्या सीखा था। ही फील्स, वो नहीं आएगा, वो फील बोल के निकल जाओगे तुम। तो कैसे सही करें? जानने के बाद भी गलती होनी है। हाँ, होनी है। आप में से ज्यादातर जानने के बाद भी गलत करोगे, तो पढ़ाने का फायदा क्या है? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मैं यहां से इस चैप्टर को क्लोज कर दूं कि समझ में आ गया ना, और आपने कहा हाँ सर, तो चलिए कुछ और पढ़ते हैं नया, इसका मतलब आप ये कभी सही से फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि पढ़ा देने से और सीख लेने से कोई सही बोलने नहीं लग जाता। वो बात खाली दिमाग में जाके बैठ गई, अच्छा ठीक है ऐसा होता है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब भी आपका मुंह खुलेगा, मुंह से निकल जाएगा ही लिव इन माई विलेज बोल देंगे, आप क्या बोल देंगे? लेकिन आपको बोलना क्या चाहिए? ही लिव्स इन माई विलेज। अभी कितना आसान लग रहा है ना? नहीं कर पाओगे। और मैं एक कैमरे पे बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग में है ना, आप में से ज्यादातर ये नहीं कर पाएंगे, आप गलत ही बोलेंगे। फिर फायदा क्या है पढ़ाने का? कुछ भी नहीं फायदा। इसीलिए ये कोर्स इफेक्टिव है, क्योंकि ये बात यहां पर खत्म नहीं हो गई कि मैंने पढ़ा दिया बात खत्म। अब अगले 1-2 महीने तक आपको इतनी प्रैक्टिस मिलेगी इसकी कि आपको नींद में भी ही लिव्स बोलेंगे। आप क्या सोचने का जरूरत नहीं है, नींद में आप ही लिव्स बोलोगे। आदत पड़वाएंगे अब। ये तो नॉलेज था ना। अब फ्रॉम हियर वी विल वर्क टू गिव यू अ हैबिट ऑफ ही लिव्स, ही गोज, ही ईट्स, ही स्लीप्स, ही लव्स। इसकी आदत अब पड़वानी है। और ज्यादातर क्लासेस में आदत पड़वाने के लिए कोई काम नहीं होता है। नॉलेज दे दिया, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लेट्स डू इट। Andrew Johnson comes, he works, है ना? ये ध्यान दे लिए हम लोग। लेकिन IUB दे के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम किसके साथ है? He, she, it. Let's look at Claudia Luke's text. First verb, yes beta. It is your turn. अच्छा, आई से कौन सा वर्ड बना था? माई, माई बना था ना? माई नेम और योर नेम, योर। ठीक है, योर से एक वर्ड होता है, लेकिन उसकी पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे आप, इसलिए तो हो रहे हैं परेशान। जरा पूछिए, माई नेम, माई मदर, योर मदर, माई हाउस। दिमाग में है? अभी योर्स को भूल जाना है, कुछ सोचना नहीं है, उसका टाइम आएगा, मैं बताता हूं, ठीक है? लेट्स सी, लुक एट क्लॉडिया टेक्स्ट। फर्स्ट वर्ब इज, सेकेंड वर्ब फिर से इज, शी इज अ जूलॉजिस्ट, राइट? नेक्स्ट वर्ब teaches, next verb lives, next verb works, next verb studies, next verb likes। कुछ लोग बोलेंगे वर्किंग वर्ब नहीं है सर, चल रहा है मन में ऐसा, चल रहा है ऐसा? बताता हूं। आपके पॉकेट में है, क्या है? आपके पॉकेट में है, क्या है? बोलिए पैसा। क्या है? चीनी। क्या है? सिक्के। क्या है? कागज। क्या है? काजू। क्या है? बताइए, पॉकेट में क्या है? बोलिए डायनासोर। क्या है? चाकू। क्या है? ठीक है, बात समझ में आई? आपके दिल में है, क्या है? प्यार। क्या है? नफरत। क्या है? खुशी। क्या, अच्छा खुशी नहीं है आज, राइट? ओके, क्या है? दर्द। तो जब भी क्या से सवाल पूछते हैं, जो भी जवाब देंगे वो चीज एक नाउन होगा कि वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा, आप सोच के बताओ मुझे। अगर मैंने पूछा क्या, तो जो भी जवाब आएगा वो नाउन होगा कि वर्ब होगा कि एडजेक्टिव। यू गाइस थिंक एन आंसर। मैंने पूछा आपसे क्या, बताइए।